Set to forward with the Ajay Pendor of Maharashtra in the flyweight category. Ankit, this is from red, and blue from Ajay Pendor. But we are yet to go to watch the in the flyweight category. Rashi Sharma of Uttar Pradesh, and Nisi Laxi Tampi from Kerala. She is from blue. Also builds a confidence and character traits such as self-determination and self-discipline too. The women's flyweight category, Rashi Sharma versus Nishi Laxi Tampi. Rashi Sharma, she is from red, and Nisi, she is from blue. Hopefully they have been looking out for some better strikes in the first round, and back-to-back the punches. We have seen such a beautiful aggression from Nisi Laxi Tampi. She is a continuous state champion. A fabulous sport to watch, this sport of boxing belonging to the fighters teams, where under the supervision of a judge and the commission of two athletes competed using fair fighting techniques under a set of rules. This boxing is absolutely a treat to watch. More games are happening. This flyweight category, what a lovely start in the women's. One of the most important pieces of equipment for the boxers to wear the gloves and used to protect the wrist and hands of the boxers, and also to protect the face of the opponent from incoming blows. Rashi Sharma, she is trying to avoid the incoming strikes from Nisi Laxi Tampi. Nisi, she is looking very great now, and she has been one of the competitive level to see the ground area. And the boxing professionals, we have seen the amateur level, either it has been decided in the clean punching or the effective aggressiveness or the ring generalship and the defense. It almost more important in the sport of boxing. And the judges will score the points with the 10 points for the round. Hand grab, sol and hook. This are the very important one to watch out in the sport of boxing. There are more support we can see in the Mahatma Mandir Venue 3 in Gandhinagar. A huge crowd of came here to watch this one of the spectacular game, the sport of boxing. The distributed between legs, twist the foot to add power to the punch and tuck your chin into the shoulder. These are all the things have been very much to watch in the sport of boxing. There are some certain rules. So fighters may not hit below under the belt or trip or hold a kick and headbutt, bite and push or spit to the opponents. More things are happening in the flyweight category between Rashi Sharma and Nisi Laxi Tampi. It's such a treat to watch those kind of basic foot movements as well as the angle, those kind of perfection and the variation technique Nisi wants to do, and she is trying to throw the punches again into the head area. That region she wants to damage heavily on over to the Rashi Sharma. The strength and the endurance, it seems to be a brutal punch. They have to obey for the referee instructions. Just prefer those show aggression to make faces and do that tricks. Nisi trying to land better punches and a better technique. Was basically throwing the punches everywhere. Technique all just aggression. See, but in round 2 we are in the flyweight category in the 52 kg for Rashi Sharma taking on Nisi Laxi Tampi. Rashi Sharma, she's from red, and Nisi Laxi Tampi, she is from blue. Hopefully they are good with their basic foot movements and the strategy. They have to go and work it out. That's a good kind of tactics well used by Rashi Sharma, trying to throw the punches heavily again. And there she goes for the momentum to reach to the attack or a strike. She earned some few salvage of points, quick straight hands. That jab was the main difference for me, especially the throwing of punches, changing her old school technique and the versatile skill set for every punch, for every moment. Once again trying to throw the cross as well as to going for any straight jabs. That could have been create a better damage. Back to back, you can see some pretty body shots landed and the power footwork, brilliant to watch. Absolutely a great start
this fight between Rashi Sharma and Nisi Laisi. Always noticed she was always defensively aware while ferociously attacking. She attacked recklessly, always precise and calculated. That's a boxing technique. She could really say that is her hip and foot movements were incredible. Seems to be a great beast, and the burst of speed definitely comes from the calves. When you put in a lot of work and have an amazing genetics, it's just crazy what can happen. I'm glad that she is able to show her ring IQ and boxing ability well. People only think she is an knockout artist and puncher, but Rashi Sharma, she is a phenomenal boxer as well. Protection is very much important. Have to wait and watch what they can able to do and whether they have been going for a better result in the round 2. We have seen such a great moments in the round 2 so far. Nisi Laisi is trying to avoid incoming strikes from the Rashi Sharma, but also she is very much defensive and also had advantage of a uniform technique. She has that kind of accurate level, and in fact she was trying to score the points with her technique, that kind of decision she has. She was trying to land the punches this time better than Nisi Laisi. That's a level of aggression she has. Maybe she can go for some better punches in this round. We have seen so far such a good comeback from Rashi Sharma, and Nisi Laisi. She's stronger as well as harder and maybe accurate with her powerful punches. It is a 3-minute, 3-round. Absolutely a good start from Rashi Sharma. This is a round 3. Boxers ready with their the massage and getting some rest, a minute of rest for the next round. Here the round 3. Punch. The word experience matters. It's all about the speed and the footwork we have seen from Nisi Laisi so far. Those straight jabs were respectively seems to be a good, and they have been going out for the clinch, and now might be getting an advantage of the variation in attack of the technique. Those kind of strikes seems to be a very much perfect. Landing the punches hardly. She might get over for the momentum. Rashi Sharma. She has the ability to go for the momentum as much as possible. Twist her face slightly at the end of the punches. Keep a slight bend in her arm. Nisi Laisi trying to protect some part of in her whole body level, and she was trying to go for the punches heavily, but Rashi Sharma trying to avoid the incoming strikes. Maybe she got some momentum. We are happening in the both the ring and round 1. We have seen as well as in the ring 1 and ring 2 men's category fight what is happening, and in the women's category we are seeing the flyweight Rashi Sharma versus Nisi Laisi. Maybe this round would have been event a little bit harder, better than the previous round. They compress their hands and provide wrist and knuckle support, get them to learn and how to wrap their hands, and will save herself from the lots of pain. The judges will score the points. Round 3, 1 winner and 1 result. Better than them this time. From the round 2, we can expect from Rashi Sharma over on Nisi Laisi. The variation of the attack from the timing and the angle was precise to watch from Rashi Sharma. She has just turned back the game in the round 3. Good comeback. Seems to be a tight call for the judges to look for a better results. That kind of the footwork and the power and the endurance. What a strength from Rashi Sharma. Well worked with a good kind of strategy. Maybe better footwork and the explosive and accuracy. We have seen the protection and the huge opportunity getting a momentum in this round.
We are almost get closer to the round 3. Seconds are running out. Strikes to the body, power shots. Those body shots were landed heavily from Rashi Sharma on Nisi Lassi Tampi. That quick straight hands was seemed to be a better difference in this round, throwing the punches heavily on one side. She has that plan to change his versatile skill set. More games are happening, more actions are yet to come in several games. Surat and Rajkot and Gandhinagar and Ahmedabad, the Mahatma Mandir venue 3, Gandhinagar. We are in Juteka, India, and Juteka, India. Rice Road repeat, celebrating unity through the sports. Such a great experience and amazing fight we have seen in the flyweight category. Rashi Sharma versus Nisi Lassi Tampi. Hopefully looking out for some better results. Rashi Sharma just have to wait and watch for the judges' results. Ladies and gentlemen, this is knockout number 37. Split decision. Winner in the red corner, 4-1. Rashi Sharma from Uttar Pradesh. Officials, knockout number 38. Referee अंजलि कुमार from बिहार। और ये हैं दिल्ली के मुक्केबाज रोहित मोर और मोहम्मद हुसामुद्दीन। सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज। नियमों से पुनः अवगत कराया जा रहा है दोनों ही मुक्केबाजों को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं दोनों ही मुक्केबाज। अगर दोनों मुक्केबाजों के खेल कौशल की अगर हम बात करें तो मोहम्मद हुसामुद्दीन जो कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में जो खेले गए थे उसके कांस्य पदक विजेता है, और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो खेले गए थे उन्होंने भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था, और सीनियर नेशनल यानी कि एलिट नेशनल चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता है वर्ष 2022 के। रोहित मोर की अगर हम बात करें तो विश्व चैंपियनशिप के में प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने वर्ष 2021 में, और सीनियर नेशनल यानी कि एलिट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं। स्टेट जैब के साथ हुसामुद्दीन आगे बढ़कर प्रहार करना चाह रहे हैं सेना के मुक्केबाज। सर्विस बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के रेफरी द्वारा स्टॉप का निर्देश और पकड़े नहीं अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों को, यह निर्देश दिया गया रोहित मोर को जो कि दिल्ली के मुक्केबाज हैं ब्लू कॉर्नर के। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ते हुए 1-2-1 की गेम खेलते हुए दोनों मुक्केबाज बहुत ज़्यादा नीचे झुक रहे हैं, मुक्कों के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग कर रहे हैं दिल्ली के मुक्केबाज। सावधानी बरतें ऐसा निर्देश दिया गया डॉक्टर नायक रेफरी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, शैक्षणिक योग्यता इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है उनकी रेफरी में ऑफिशिएटिंग में। पुनः रेफरी ने निर्देश दिया, स्टॉप की कमांड दी। साइड स्टेप लेकर बाहर जाने की कोशिश दिल्ली के मुक्केबाज की। प्रयास अच्छे। यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों के 2 बार के कांस्य पदक विजेता हैं रेड कॉर्नर के मोहम्मद हुसामुद्दीन। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के स्वर्ण पदक विजेता हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने शिरकत की है भारत की, और भारत का परचम लहराया है। तो हम कह सकते हैं काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज हैं, और वो अनुभव आज उन दोनों ही मुक्केबाजों की तारीफ करनी होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही मुक्केबाजों ने भारत का परचम लहराया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़कर प्रयास करना चाह रहे हैं। लॉन्ग रीच का पूरा फायदा उठा सकते हैं दिल्ली के मुक्केबाज। हुसामुद्दीन को प्रहार करने के लिए अंदर आना होगा, नजदीक जाना होगा, क्लोज डिस्टेंस पर जाना होगा सेना के मुक्केबाज। पुनः निर्देशित किया, सावधानी बरतें हैं दिल्ली के मुक्केबाज। बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, सेना के मुक्केबाज। तुरंत ही आक्रमण करना होगा उनको। जैसे ही मुक्केबाज नजदीक आता है दिल्ली का तभी आक्रमण करें, और दिल्ली का मुक्केबाज
काउंटर अटैक की गेम खेले तो ज़्यादा अच्छा है। प्रथम प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के मुक्केबाज, मगर उस काउंटर अटैक की गेम में भी बीच बीच में प्रयोग करते हैं। और दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर, और सेना और दिल्ली के मुक्केबाजों के मध्य यह मुकाबला चलता हुआ। सेना के मुक्केबाज जो कि रेड कॉर्नर के मुक्केबाज हैं, और वहीं दिल्ली के मुक्केबाज जो कि ब्लू कॉर्नर में हैं। रोहित मोर दिल्ली के मुक्केबाज विश्व चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भारत का, और वहीं अगर सेना के मुक्केबाज की बात करें, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज की बात करें, तो राष्ट्रमंडल खेलों के वर्षों 2022 और 2018 में कांस्य पदक जीता था। न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा यहाँ पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को। लेसिस यानी कि शूज में कुछ व्यवधान हुआ है, उनको बांधते हुए दिल्ली के मुक्केबाज के लेसिस को। दिल्ली के प्रशिक्षक मिस्टर रमेश उन्हें निर्देश कर रहे हैं, लॉन्ग रिच का प्रयोग कर रहे हैं। अब फायदा उठाने की कोशिश है, लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलना चाह रहे हैं दिल्ली के मुक्केबाज, मगर हुसैमुद्दीन कोई अवसर नहीं दे रहे हैं। शेल गार्ड रख के अपने आप को बचा रहे हैं और प्रति उत्तर देने की कोशिश, यानी कि काउंटर अटैक करने की कोशिश। हाथ को उल्टा मार रहे हैं दिल्ली के मुक्केबाज, यह उनके लिए नुकसानदायक है। इस तरीके का खेल कौशल मान्य नहीं होता है। पुनः प्रयास अच्छे कर रहे हैं दिल्ली के मुक्केबाज के लिए, यह नुकसानदायक है। दिशाहीन लक्ष्यहीन प्रहार है। और जजेस की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सिक्किम, ये 5 राज्यों के जजेस हैं जो कि खेल कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं खिलाड़ियों के। पुनः स्टॉप की कमांड रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, स्टॉप की कमांड को सुने, घूमे नहीं रेड कॉर्नर के हुसैमुद्दीन को। जजेस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्लिप हुए, मुक्के के प्रहार से नहीं स्लिप हुए हैं, गिरे हैं, स्लिप हुए हैं। राजेश नायक रेफरी, और जजेस की अगर हम बात करें तो वजीर बिन कुतुब, प्रीतम, और राजस्थान से विशाल कुमार निर्वाण, छत्तीसगढ़ से तीरथ, और यूपी से जो रेफरी हैं रिंग के मध्य राजेश नायक। प्रयास अच्छे, मगर उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी होता है। तो उस प्रक्रिया में निरंतरता बनाने की कोशिश। और यहां पर इस चक्र की समाप्ति, दूसरे चक्र की समाप्ति हो चुकी है। और तीसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। बढ़त बनाने में कामयाब है अभी सेना के मुक्केबाज हुसैमुद्दीन, मोहम्मद हुसैमुद्दीन। रेड कॉर्नर के दिल्ली के मुक्केबाज थोड़ा सा प्रयास और करें, बहुत ज्यादा पैरों को खोल देते हैं दिल्ली के मुक्केबाज, ये उनके लिए नुकसानदायक है। लॉन्ग डिस्टेंस पर खेले, कदकाठी उनकी बहुत लंबी है, तो अपनी हाइट का, अपने फुटवर्क का एडवांटेज ले सकते हैं। मगर यहाँ पर अनुभवी मुक्केबाज हैं दोनों ही मुक्केबाज, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काफी अच्छा अनुभव है उनको, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा दिल्ली के मुक्केबाज को। बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक रेड कॉर्नर के मुक्केबाज। अपरकट का प्रयोग रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया, सावधानी बरते दिल्ली के मुक्केबाज को, रोहित मोर को, कि मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें, वह उनके लिए नुकसानदेह है। बहुत जरूरी यहाँ पर स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। बहुत विलंब कर रहे हैं दिल्ली के मुक्केबाज।
चपलता के साथ, चुस्ती दुरुस्ती के साथ, बहुत ही तेजी के साथ अगर प्रहार करें तभी उनके लिए फायदा होगा, अन्यथा ये 2 राउंड उनके पक्ष में नहीं है। यह चीज उनको समझनी चाहिए। बढ़त बनाने में कामयाब है सेना के मुक्केबाज और ये बढ़त निरंतरता बनाए रखी हुई है उन्होंने इस तीसरे चक्र में भी। डॉक्टर नायक द्वारा पुनः उनको निर्देश दिया, सावधानी बरतें, मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें। रेड कॉर्नर के मुक्केबाज को, सेना के मुक्केबाज को बॉडी पर प्रहार करना चाह रहे हैं सेना के मुक्केबाज, मगर उनको नजदीक जाना होगा क्योंकि क्लोज डिस्टेंस पर जब जाएंगे तभी हुक और अपरकट का प्रयोग कर सकते हैं और वही कनेक्ट भी होंगे। तो बहुत जरूरी उनको नजदीक जाकर खेलें। शेल गार्ड रखें, शेल गार्ड रख के वीव करें या डक करें, उसके बाद अंदर जाएं। तो यहां पर टाइम आउट लिया और यह मुकाबला पुनः चलता हुआ तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। यहां पर दिल्ली के मुक्केबाज को बहुत जरूरी लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलें, प्रहारक क्षमता अच्छी दिखाएं। सुनिश्चित है कि जोखिम उठाना होगा उनको, मगर इस तरीके का जोखिम की बहुत ज़्यादा स्वयं ही झुक जाते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदायक है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खेलें तो उनके लिए अच्छा होता। प्रयास करते हुए एक दूसरे पर प्रहारक क्षमता दिखाते हुए दोनों ही मुक्केबाज, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, सेना के मुक्केबाज। बहुत ही सुंदर प्रहार था, बॉडी पर प्रहार था, एब्डोमिनल पर उनका स्ट्रेट जैब पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ। नाभि से ऊपर का हिस्सा जो था वहां पर पंच लैंड हुआ। कॉर्नर में ले जाने की कोशिश थी दिल्ली के मुक्केबाज की, मगर अब अपने उस प्रयास को उन्होंने विफल कर दिया, हाथ से जाने दिया। और यहां पर सुनिश्चित है कि बहुत अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने। और निर्णय की घोषणा कुछ ही क्षणों में। और यूनानिमस डिसीजन 5-0 से इस मुकाबले को जीता है। पहले चक्र की बात करें तो 10-9, 10-9, 10-9, 10-9, यानी कि सिक्किम ने 9-10 दिए थे मगर 4 जजेस ने 10-9 का स्कोर दिया था। दूसरे चक्र की बात करें तो 10-9, 10-9, 10-9, 10-9 और सिक्किम ने भी 10-9 दिए। और तीसरे और अंतिम चक्र में 10-9, 10-9, 10-9। तो यहाँ पर एक मत से विजयी घोषित किया गया रेड कॉर्नर को। एक अनुभवी मुक्केबाज, उत्कृष्ट मुक्केबाज भारत की। और यहां पर रेड कॉर्नर की मुक्केबाज की बात करें तो केरला की मुक्केबाज जो कि उनको चुनौती दे रही हैं, इंद्रराज के ए, केरला की स्टेट चैंपियनशिप की पदक विजेता। और ये पहले चक्र की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज लवलीना, ओलंपियन, लॉन्ग रीच का पूरा फायदा उठाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ने का प्रयास है। एक अच्छा प्रहारक क्षमता उनकी। अक्टूबर 1997 में जन्म लिया था इन्होंने। भारतीय मुक्केबाज हैं। महिलाओं के भार वर्ग में इन्होंने ओलंपिक में शिरकत करी, कांस्य पदक जीता। आईबा विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में वर्ष 2019 और आईबा महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक विजेता। असम राज्य की मुक्केबाज।
लगातार प्रयासरत, डिस्टेंस बहुत अच्छा बना रखा, जैसे ही प्रहार करती है तभी एकदम पीछे की ओर हट जाती है, अपनी प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दे रही है कि वह कोई प्रहार कर सके, तो प्रहारक क्षमता अपनी दिखा सके। तो ये एक उत्कृष्ट अनुभवी मुक्केबाज की साफ छवि यहां पर दिखती हुई ब्लू कॉर्नर की। प्रयास बहुत अच्छे और उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही हैं। जो रणनीति उन्होंने सोची है स्ट्रेट जैब की, और स्ट्रेट जैब पूरी तरह से कनेक्ट होता हुआ, तो एक अच्छा प्रयास। लवलीना के पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव उनका यहां पर दिखता हुआ। जैसे ये केरला की मुक्केबाज जैसे उनके नजदीक आई प्रहार करने के लिए साइड स्टेप लिया, ये अच्छी रणनीति उनकी, कोई मौका नहीं दिया केरला की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज को ब्लाइंडली जा रही है, सर को नीचे डालकर खेल रही है केरला की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज। यह उनके लिए नुकसानदेह है। इस तरीके से आप अपने प्रतिद्वंदी को जब देख ही नहीं पाएंगे तो उस पर प्रहार क्षमता आपकी कैसे रहेगी। और सबसे बड़ी चीज उनकी कमी, फुटवर्क नहीं दिख रहा है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज का। प्रहार करते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा, बॉडी वेट अपना ट्रांसफर करना होगा दोनों पैरों पर बराबरी से। लवलीना का वह फुटवर्क यहां पर दिखता हुआ नपातुला फुटवर्क है, उनका डिस्टेंस उन्होंने जो मेंटेन कर रखा है वह बहुत सुंदर है। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता, विश्व चैंपियनशिप वर्ष 2018 जो कि दिल्ली में हुए थे उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था, और 2019 में जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो वर्ष 2017 में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, और दुबई में जो वर्ष 2021 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है, दूसरा चक्र। दूसरा चक्र है यह, यहां पर बढ़त बनाने की कोशिश जो उन्होंने कर रखी थी लवलीना ने, वही कोशिश उनकी पुनः स्ट्रेट जैब के साथ। एक अच्छा प्रयास है उनका, अपनी प्रतिद्वंदी को लेफ्ट हैंड से दूर रख रही हैं और राइट उनका जो स्कोरिंग पंच है उससे वह प्रहार करके अंक अर्जित कर रही हैं। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया, सावधानी बरते, ब्रेक की कमांड को सुने। ब्रेक की कमांड में उनको एक दूसरे से दूर होना होता है, मुकाबला रुकता नहीं है मगर दूर होकर खेलते रहना होता है। तो ब्रेक में आपको अपने प्रतिद्वंदी से दूर हटना होता है, स्टॉप में आपको मुकाबला नहीं खेलना, रोकना होता है अपने आप को, मगर ब्रेक में रुकते नहीं है खिलाड़ी, पीछे स्टेप बैक लेते हैं और फिर मुकाबला चलता रहता है। यहाँ पर साइड स्टेप लिया लवलीना ने, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय, अपर कट का प्रयोग लगाया, बहुत ही अच्छा अपर कट का प्रयोग, पूरी तरह से कनेक्ट किया उन्होंने टारगेट एरिया पे, एब्डोमिनल पे, और फेंट अटैक करने की कोशिश, भ्रमित कर रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी को, केरला की मुक्केबाज को। अपर कट और फिर हुक, एक अच्छा प्रयास, अपर कट हुक लगाने के बाद फिर अपने आप को वीव किया, साइड हुई, ये अच्छी उनकी रक्षात्मक शैली। यहां पर थोड़ी सी चूक हुई लवलीना की, गार्ड नहीं रखा था, शेल गार्ड नहीं रखा था, जिसका फायदा उठाया केरला की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज ने, और एक टारगेट एरिया पे पंच सुनिश्चित किया। अपना प्रहारक क्षमता दिखाने में एक अच्छा सफल प्रयास उनका। लगातार प्रयासरत, दूसरा चक्र चल रहा है और बढ़त बनाने में कामयाब है लवलीना, असम की मुक्केबाज, ओलंपियन है। इससे पहले सिमरनजीत कौर का मुकाबला हुआ था, वह भी ओलंपियन थी, उनका मुकाबला 60 किलो भार वर्ग में था। और यहाँ पर लवलीना जो कि ओलंपियन है, 75 किलो में मिडल वेट में खेलती हुई, और ये मुकाबला मिडल वेट का मुकाबला 70 से 75 किलो भार वर्ग का केरला और असम के मध्य चलता हुआ क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। जो भी मुक्केबाज यहाँ जीतेगा वह सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करेगा और पदक तालिका में भी अपना नाम सुनिश्चित कर लेगा। तो विजेता मुक्केबाज पदक तालिका में सुनिश्चित है अपना नाम करेगा।
बहुत दूर से प्रयास कर रही हैं। जब प्रहार करती हैं केरला की मुक्केबाज तो फुटवर्क नहीं कर रही हैं, आगे नहीं आ रही है, बॉडी वेट भी ट्रांसफर करना होगा और हाथों पैरों को तालमेल पूरा बनाए रखना होता है। तो ये उनकी एक कमी कह सकता हूं मैं, जो उनको नुकसान पहुंचाएगी। स्ट्रेट जैब कॉर्नर में फंसी थी, मगर यहां पर इसी के साथ बेल और बेल के साथ ये चक्र समाप्त, दूसरा चक्र समाप्त हुआ। बढ़त बनाने में कामयाब, अभी तक अपने दोनों चक्रों में बढ़त बनाने में कामयाब हुई हैं असम की मुक्केबाज। लगातार प्रयासरत है, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। यहां पर करो या मरो वाली स्थिति है यहां पर केरला की मुक्केबाज के लिए। अब अपने पहले दोनों चक्र वह पास हुई हैं, मतलब अंकों की अगर दौड़ गणना की बात करें तो अंकों में वह पिछड़ रही हैं। तो ये ही एक उनके पास आखिरी राउंड है जिसमें वह वापसी कर सकती हैं अपनी। नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, वापसी करना चाहें तो एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करें तो स्वाभाविक है वापसी कर पाएंगी, मगर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर प्रतीत हो रहा है क्योंकि उनके सामने जो अनुभवी मुक्केबाज है वह ओलंपियन है। तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव मैं कह सकता हूँ जो कि पूरी तरह से केरला की मुक्केबाज के ऊपर बना हुआ है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए केरला की मुक्केबाज को। प्रयास अच्छे कर रही हैं, संघर्षपूर्ण मुकाबला करने का प्रयास है उनका कि एक संघर्षपूर्ण मुकाबला दिखाएं। प्रयास अच्छे, लगातार प्रयासरत, 1-to-1 की गेम खेलती हुई रेफरी द्वारा निर्देश, ब्रेक की कमांड को सुने, एक दूसरे से दूर हों। बहुत अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किया ब्लू कॉर्नर की आसाम की मुक्केबाज लवलीना ने। स्टेप बैक लिया, स्टेप बैक लेकर फिर साइड स्टेप लिया, साइड स्टेप लेकर फिर सिंगल हैंड अटैक किया राइट स्टेट और फिर लेफ्ट। तो ये डबल पंचेस का प्रयोग, दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से। रेफरी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है दोनों ही मुक्केबाजों को कि सावधानी बरते, ब्रेक की कमांड को सुने, ब्रेक में आप एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे को पकड़े नहीं। और बहुत ज़्यादा नीचे झुक रही हैं केरला की मुक्केबाज, अत्यधिक नीचे झुक रही हैं और घूम रही हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया आप ड्यूरिंग द बाउट घूम नहीं सकते हैं, पीठ नहीं दिखा सकते हैं आप अपने प्रतिद्वंदी को। तो घूमना नियमानुसार सही नहीं होता है, इसीलिए रेफरी द्वारा निर्देशित किया गया उनको। और यह मुकाबला चलता हुआ तीसरा और आखिरी राउंड है, निर्णायक चक्र है, करो या मरो वाली स्थिति यहां पर केरला के मुक्केबाज के लिए। मगर उनके लिए पाने के लिए सब कुछ है अगर वह संघर्षपूर्ण मुकाबला दिखाएं, मगर दो चक्र अभी तक वह पिछड़ रही हैं, हार रही हैं। अंक तालिका की अगर देखें तो बढ़त बनाने में कामयाब लवलीना, पुनः प्रयासरत, बहुत ज्यादा बार बार पकड़ रही है केरला की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, जो नियमानुसार सही नहीं है। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया आप पुशिंग नहीं कर सकते हैं, धकेल नहीं सकते हैं। और यहां पर स्लिप हुई है, मुक्के के प्रभाव से नहीं गिरी हैं, स्लिप हुई थी और यहां पर संतुलन बिगड़ा था उनका। Ladies and gentlemen, this is an about 45. और निर्णय की घोषणा, Winner in the blue corner, Lawlina from Assam. और ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज लवलीना ने इस मुकाबले को जीता है। 75 किलो भार वर्ग का महिलाओं का ये मिडिल वेट का मुकाबला था, जिसको कि बहुत ही आसानी के साथ उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इस मुकाबले को जीता अपनी प्रतिद्वंदी केरला के विरुद्ध। Referee is yet to start the board. The sudden burst of speed definitely comes from the calves and the better punches we can see in this. Moreover, it is going to be a 3-minute, 3-round bout. They have to obey for the all set for the second bout in the flyweight. Rebecca Lalinmobi. This is Meenakshi.
We have seen such a brilliant performance, and especially a beautiful piece of outstanding performance from Rebecca on her earlier boats. But this boat is going to be a pretty much important boat in her career for Rebecca and for Meenakshi too. Such a specific movements and the basic foot movement we have seen from Meenakshi, with her kind of technique and the versatile skill set, throwing the punches heavily on one side. She has a plan to change his old school with coming to avoid the strikes to the body. And Rebecca just understanding the game level of Meenakshi and trying to put the punches heavily on. She was trying to get the momentum, and she has the ability well. We can see such a beautiful piece of the foot movement, and she got the opportunity trying to throw the punches. Well worked with a good extent of experience she has. The explosive functional strength and the footwork amazing, as well as the impressive game level we can see from Rebecca. She has the aggression, and she is just showing skill sets well much better this time. Her aggressiveness, as well as she was a precise boxer too, and she is using a kind of technique to throw the punches really. Again, a back-to-back punches. They've been going for the clinch, and they have been using the ring very well. Such a lovely to watch the sport of boxing. A great observation. Surely will be a good comeback and stronger in the sport of boxing. We can expect from Meenakshi to do the theatrics, and the judges just prefer those who show aggression to make the faces. A beautiful one so far. A perfection, and the timing and the angle we have seen from Rebecca seems to be very much out of that kind of a level technique. She has a faster movement, a faster leg, taking the guard and just getting the protection, and maybe using the ring very well. Observation, great experience. Maybe this time stronger, going out for some better footwork. That the basic foot movements we can see from Meenakshi. That straight jabs as couldn't able to deliver it properly. Once again looking out for some better punches with their speed and the footwork, the movement. It's all about the sport of boxing to avoid incoming strikes. Meenakshi was trying to cover up for the defense from Rebecca. Rebecca not giving a space to throw the punches, and she is just avoiding the defense too. Maybe she got an advantage for her explosive and the functional strength she has. She can able to use it better this time. A beautiful sport of boxing we are seeing in this 36 National Games Gujarat 2022. The elastic strips and the hands to prevent the injury, and the wrap and the training and the competition throughout these years of dedication will be coming with the one result, a minute of rest. She's absolutely a big one to watch out in this bout. A boxer is declared with the winner by scoring the balls, and it's all about based on the judges' points. Now the round 2 has started. Ring generalship and the defense and the effective aggressiveness and the clean punching, it all depends, and based on the judges' score points to decide the winner. That criteria, the level of aggression shown from the Rebecca seems to be she is very much accurate, and those powerful hands. Heavy punches we have seen from Rebecca, and she is just observing and understanding the level of game from Meenakshi, but this round may be a little bit closer and tighter for a better punches. Those punches are landed heavily. We have seen the round 1 too. Meenakshi trying to cover up, and she is getting some made up of the defense. She has that advantage to cover up for the defense. Maybe the protection and those foot movements were amazing to watch out. She was trying to cover up the protection, Meenakshi. Those straight jabs and the powerful hands we have see from
Rebecca to land the punches heavily on the Meenakshi, not giving a big space for Meenakshi to throw the punches. She has the advantage of belonging to a respective part of the ring, or the boxers should have the following basic equipments in order to compete on a race platform. It is square with posts at each other with 4 parallel ropes attached with the turnbuckle. And once again, a back-to-back punches we have seen. It may be a possible one in this 36 National Games Gujarat 2022. Compete using a fair fighting technique under a set of rules. A big game of sport of boxing. We can see such a self-discipline and self-determination to watch out. The kind of energy and aggression. Great to watch. Strength to box, but more than anything, it takes a nerve in the endurance. Concentration is very much important, and also the strength level, but also a high level of requires an athleticism, vitality and strength and other protective equipment need for the sport of boxing. Looking to fire up with the powerful hands, Meenakshi, but Rebecca seems to be very much strong, and that kind of appearance, that kind of popular sports today we are watching in the 36 National Games Gujarat 2022. It is good to see and very happy that Rebecca was trying to throw the punches heavily, and she has that accurate, powerful punches we have seen earlier bouts. That whole hand punch, as well as such a brutal hands she has. She has the strength to. We are yet to go for the round 3. Round 3. Round 3, the bout again. It started the shoulder with her elbow bent and bringing a fist from the side towards the center. Maybe it's time to throw across, as well as the punches we can see from Rebecca trying to dominate the Meenakshi with powerful punches. That replication and that concentration, that level of the aggression, it's good to see from Rebecca to turn over on with Meenakshi. The end of the punch, keep a slight bend in her arm and tuck your chin into the shoulder. A great level of the fighting spirit from Rebecca to turn back the game for her. This may be a little bit closer, and it will get tighter too, for hoping out for some one result and one answer. Addition and the aggression is very much important to showcase in the sport of boxing. Absolute the game level of reading from Rebecca. She has a big experience, and she is understanding the game level much better this time. Impressive game play, well worked with good strategy and experience to show her boxing could go for better footwork and explosive and the accuraciness. Just have to talk about the accuracy, such a self-discipline and those determination towards the sport of boxing. Such a treat to watch. Huge opportunity to throw the punches, back-to-back strikes to the body level might create a big damage on the Meenakshi, but Rebecca seems to be very much accurate to earn some salvage of points. That quick straight hand, that overhand, it has been missed, but she has that plan to change her skill set. The raw strength and the power and the technique, every body shots has such a big support for Rebecca. Huge level of applause. Always defensively aware of while ferociously attacking. That is a one moment she can get a big momentum in this bout. Rebecca
to turn over the board. Such an incredible as well as an explosive raw strength she has, a giant of boxing technique. Could really say that her hair and hip movements were incredible. Sudden of burst of speed definitely comes from the calves. Her ring IQ and boxing ability, well, people only think he is a knockout artist, and she could have been able to create a big damage, and those straight hands back to back powerful punches, using the ring very well. This time a little bit closer, once again hoping out for some one result and one winner in this bout of flyweight category. Rebecca versus Meenakshi. Such a calculated display we have seen. That is the sport of, that is the game level. It is all about the fighting level of game spirit we have seen in the flyweight category from Rebecca and also Meenakshi. It has been such a great fight so far in the flyweight category. Maybe Meenakshi, she got her attempt and she was trying to hit back hard and stronger to throw the punches heavily again, to strike a back-to-back punches we have seen in the round. Could go for a better footwork and explosive and accuracy, that kind of a functional strength we have seen. A big sport of boxing. We get to watch and use the cross and use the uppercut and everything, the face or a body. Ladies and gentlemen, Just have to wait and watch for the judges' results. knockout number 38. Unanimous decision. Winner in the blue corner, Meenakshi from Haryana. और ये है रेड कॉर्नर के मुक्केबाज पंजाब के विकास, रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर एस.के. छेत्री। आईबा क्वालिफाइड रेफरी है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से क्वालिफाइड रेफरी है मिस्टर छेत्री। और अब निरीक्षण करते हुए शिवा थापा की वेशभूषा, और शिवा थापा जो कि ओलंपियन है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ष 2015 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था दोहा में, और एशियन चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। 2013 में रजत पदक जीता था उन्होंने, 2021 में और 2017 में, और कांस्य पदक जीता था एशियन चैंपियनशिप में वर्ष 2019 और 2015 में। शिवा थापा ओलंपियन और विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता 2015 के, ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं शिवा थापा, अनुभवी मुक्केबाज। ब्लू कॉर्नर में असम की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए इस मुकाबले में, और वेल्टरवेट का ये मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। और वही अगर हम बात करें विकास की, तो विकास भी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है, यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता रहे हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, और एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के वह कांस्य पदक विजेता रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है। और वहीं अगर बात करें शिवा थापा की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी और राष्ट्रीय मुक्केबाजी का काफ़ी अच्छा अनुभव, एक बहुत ही अनुभवी उत्कृष्ट मुक्केबाज हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक युवा मुक्केबाज जो कि यूथ से आया है, वह एक ओलंपियन के साथ खेल रहा है, तो तारीफ करनी होगी इस रेड कॉर्नर के मुक्केबाज की, पंजाब के मुक्केबाज की, जो कि एक ओलंपियन के सामने खेल रहे हैं। लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकते हैं पंजाब के मुक्केबाज। और निर्णायक मिस्टर एस.के. छेत्री उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश मुक्केबाजी संघ के यह सेक्रेटरी जनरल भी हैं एस.के. छेत्री, और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ से क्वालिफाइड रेफरी हैं। यहाँ पर स्टॉप की कमांड के साथ ही उन्होंने निर्देश दिया शिवा, यहाँ पर पंजाब के मुक्केबाज को अपने प्रतिद्वंदी को पकड़े नहीं, क्लिंच करना जो कि नियमों का उल्लंघन माना जाता है। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाहा था, डबल स्ट्रेट पंच का प्रयोग किया शिवा थापा के द्वारा, मगर वह कनेक्ट नहीं हुआ था।
मगर पुनः वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पंजाब के मुक्केबाज गलती कर रहे हैं, बार बार पकड़ रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को। सर के पीछे प्रहार करना नियमानुसार सही नहीं है, इस सावधानी को बरतें। प्रहारक क्षमता अपनी नियंत्रित करनी होगी उनको। एक अच्छा प्रयास, बहुत ही सुंदर प्रहारक क्षमता। वीव करके साइड स्टेप लेकर बाहर हुए शिवा थापा। विकास कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की और पुनः प्रयासरत विकास का, मगर चपलता, चुस्ती, दुरुस्ती यहां पर साफ दिखती हुई शिवा थापा की। जैसे ही विकास ने प्रहार किया, अपने आप को वीव किया, साइड स्टेप लिया, बहुत ही सुंदर तरीके से बाहर हुए। रक्षात्मक है शिवा थापा, बहुत ही टेक्निकल बॉक्सर हैं, तो वो उनकी कार्य कुशलता, खेल कुशलता यहां पर दिखती हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी का जो उनका अनुभव है, ओलंपिक का जो अनुभव है, विश्व चैंपियनशिप का, एशियन चैंपियनशिप का जो उनका अनुभव है, वो यहां पर दिखता हुआ। एक उत्कृष्ट मुक्केबाज हैं और शिवा थापा ने ही रिकॉर्ड बनाया था। भारत के पहले मुक्केबाज थे जो सबसे कम उम्र के मुक्केबाज थे जो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था जिन्होंने भारत का। तो यह उनका अनुभव यहां पर साफ दिखता हुआ। इन 36वें राष्ट्रीय खेल जिनका कि आयोजन यहां पर महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। वो हेड कोच हैं जूनियर्स की महिला टीम की, इंडिया की। और ये अगला चक्र प्रारंभ हो चुका है। पंजाब और असम के मध्य चलता है ये मुकाबला। पंजाब के मुक्केबाज विकास जो कि रेड कॉर्नर के मुक्केबाज है, और वहीं असम के मुक्केबाज जो कि शिवा थापा ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज हैं, नीली पोशाक में यहां पर मुकाबला खेलते हुए। दूसरा चक्र बढ़त बनाने में कामयाब अभी तक शिवा थापा। पहले राउंड में एक हुक का प्रयोग करना चाहता, टारगेट पर लैंड नहीं हुआ प्रहार, मगर बहुत अच्छी सटीक जजमेंट यहां पर मैं कह सकता हूं शिवा थापा की, जो स्टेप लेकर पीछे हुए। और यहां पर रेफरी द्वारा निर्देश था सर के पीछे प्रहार ना करें। स्टॉप की कमांड थी जिसका अनुपालन करना बहुत जरूरी है। पंजाब के मुक्केबाज द्वारा थोड़ी सी चूक, शक्ति का प्रदर्शन करके धकेलना चाहते हैं। ब्रेक के निर्देश की कमांड को सुने दोनों ही मुक्केबाजों को यह समझाया गया रेफरी द्वारा। रेफरी एसके छेत्री काफी अनुभवी रेफरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं, काफी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का शिरकत कर चुके हैं, ऑफिशिएटिंग कर चुके हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत करते हैं। और अभी एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल्स जो हुए थे उसमें भी यह ऑफिशिएटिंग करने गए थे। आइवा स्टार रेफरी हैं। ब्रेक का निर्देश, ब्रेक के निर्देश पे दोनों ही मुक्केबाजों को एक दूसरे से दूर होना होता है। बहुत अच्छा प्रहार था, मगर टारगेट एरिया पे पूरी तरह से लैंड करने से पहले ही अपने मुक्के को वापस ले जाते हैं पंजाब के मुक्केबाज। प्रयास अच्छे हैं उनके, प्रहारक क्षमता अच्छी है, मगर वो प्रहारक क्षमता तभी सफल होगी जब वो अंक में परिवर्तित हो। यानी कि टारगेट एरिया माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है, और फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के अगर कोई पंच टारगेट एरिया पे लैंड होता है उसे ही स्कोरिंग ब्लो कहा जाता है। तो अपरकट का प्रयोग, एक दूसरे को पकड़ते हुए, क्लिंच करते हुए बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश। रेफरी द्वारा निर्देश, ब्रेक के निर्देश को समझें, एक दूसरे से दूर होना होता है ब्रेक के निर्देश पे। तो बहुत अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन। प्रयासरत, दूसरा चक्र समाप्ति की कगार पर है। यहां पर बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक शिवा थापा, असम के मुक्केबाज, ओलंपियन। और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति हुई। दूसरे चक्र की समाप्ति, स्टॉप की कमांड को सुने ऐसा निर्देश दिया गया, और अगले चक्र की शुरुआत हो चुकी है। तीसरा और निर्णायक चक्र। एसके छेत्री उत्तर प्रदेश के रेफरी, और तीसरा और अंतिम राउंड
असम के मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर में शिवा थापा, और वहीं उनको चुनौती देते हुए पंजाब के मुक्केबाज मिस्टर विकास लाल पोशाक में। एक अच्छा प्रयास, बॉडी पर प्रहार था, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने टारगेट एरिया को देखा, समझा और प्रहार क्षमता दिखाई शिवा थापा ने। अनुभवी मुक्केबाज का यही होता है, चपलता के साथ उन्होंने डबल पंचीज का प्रयोग किया, बॉडी पर प्रहार, सिंगल हेड अटैक शिवा थापा का, स्ट्रेट जैब, बहुत ही सुंदर प्रहार, हुक का प्रयोग, मगर यहां पर रेफरी ने उसी समय उनको चेतावनी दी कि सावधानी बरतें। एक प्रयास बहुत अच्छा शिवा थापा का, बहुत ही सुंदर तरीके से खेल का प्रदर्शन करते हुए साइड स्टेप लेकर बाहर जा रहे हैं। एक अच्छी रणनीति उनकी, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमता अपनी दिखाते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रेट जैब और स्ट्रेट जैब के साथ हुक, हुक के बाद फिर स्ट्रेट। एक अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर खेल का परिचय, पुनः प्रयासरत। यहां पर बहुत जरूरी है शिवा थापा के साथ खेलते हुए पंजाब के मुक्केबाज को कि शेल गार्ड रखें, शेल गार्ड रखना बहुत जरूरी है पंजाब के मुक्केबाज को। यहां पर थोड़े से प्रभावशाली प्रहार किए हैं उन्होंने, मगर बहुत देर कर दी। पहले दोनों राउंड उनके हाथ से निकल चुके हैं। यहां पर अंतिम क्षणों में जाता हुआ यह मुकाबला तीसरा और अंतिम निर्णायक राउंड है, तो फिर भी देर नहीं है, मगर एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमता दिखाएं, तभी वह अगर केवल और केवल केओ करें तो ही इस मुकाबले को जीत पाएंगे, और केओ कर पाना इतना संभव नहीं लग रहा है उनके लिए। और अंकों की अगर बात करें तो अंक तालिका की ओर अगर गणना करें तो शिवा थापा थोड़ा सा अधिक उनसे बढ़त बनाए हुए हैं। ब्रेक का निर्देश रेफरी द्वारा, और ब्रेक के निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया ब्रेक की कमांड को सुने, अन्यथा उनको वार्निंग दे दी जाएगी। यह निर्देश किया उन्होंने अपने इशारे से। तो बहुत ज़रूरी है खिलाड़ियों को इस चीज़ को समझना कि साफ सुथरा खेल होना चाहिए। जब रेफरी द्वारा ब्रेक का निर्देश दिया जाए तो आप अपने प्रतिद्वंदी से दूर हटें। पुनः निर्देश, सर को उठाकर खेलें। शिवा थापा को कॉशन दिया गया रेफरी द्वारा। रेफरी एस के छेत्री, यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं और उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। स्ट्रेट जैब, बहुत ही सुंदर प्रहार, और इसी के साथ तीसरा और निर्णायक चक्र समाप्त हुआ। अच्छे खेल का प्रदर्शन, एक साफ सुथरा खेल खेला गया। तारीफ करनी होगी दोनों ही मुक्केबाजों की, और पंजाब के मुक्केबाज की भी बहुत तारीफ। अच्छे खेल को प्रदर्शित किया उन्होंने, प्रयास उनके बहुत अच्छे थे। हालांकि उनके सामने एक बहुत ही अनुभवी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज थे शिवा थापा, मगर उस दौरान उन्होंने एक अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। ये लेना। और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो निर्णय की घोषणा कुछ ही देर में, और शिवा थापा ने इस मुकाबले को जीता है अंकों के आधार पर। बहुत ही सुंदर खेल का परिचय, यूनानिमस डिसीजन।